We are very privileged that Swamiji, who has written some outstanding books on Vedic mathematics, is a world-renowned authority on the subject, and he strongly believes that one can, in fact, achieve salvation of the soul through mathematical principles. It's an extraordinary formulation, both in terms of philosophy and in terms of practice. It's also our privilege that we would be able to understand the entire discourse on philosophical aspect, scientific aspect, and the practical dimensions of our daily life, our day-to-day thinking and deliberations of our everyday struggle, and be able to find ways by which we can lead a more noble and meaningful life. मैं अनुरोध करूँगा जगतगुरु स्वामी जी से कि वो हमको अपने संदेश में अपने मार्गदर्शन दें हमारा, और हमको बताएं कि किस तरह से अलग अलग विधाओं से, वैज्ञानिक विधा से, व्यवहारिक विधा से एवं दार्शनिक विधा से हम अपने जीवन को और सारगर्भित बना पाए। स्वामी जी। It's very important that we stress and highlight the role that management education has placed on ethics, on public values, and on professional standards of service to the society. Our institute has always upheld the values that our constitution makes us all obliged to uphold, which is of non-discrimination, which is also of respect for merit and for being fair to all classes of citizens of our country. It is very important to highlight that in recent years, our institute has made special efforts to be inclusive and assimilative even of physically challenged people and other students from various economic and social backgrounds. Given such an approach to assimilate a whole variety of groups of our society, it is not natural that our faculty and our students would, and our staff would have that compassion, will have that inclusive spirit by which we are able to serve both our internal constituents, the students, the staff, and other service providers, and also the external society, members of society, people from business, people from society, people from agriculture, people from civil society, industry, and government, among all the sections of our society. It is our privilege, therefore, to understand that when paradoxes emerge in our life, when it is not always clear as to which way should we move, when the professional and the personal values come in conflict, when we are not able to decide as to whether short-term versus long-term goals must be taken off. We have to make a judgment. We have to decide as the call of conscience has to be invoked. And at such moments, the true character of the individual and the institution comes into play. I'm very proud to say that our institute has upheld various values because of which it has been recognized around the world and of course in the country as an institute of eminence, where almost every parent in our country would like to wish to have their wards educated here. It is not just education which is important, but also the service that our institute provides in terms of advice, consultancy, and other support to the government and to other wings of our society, other aspects of our society. We also are very keen about inclusive education, and we try that nobody remains deprived of the excellence that our institute has achieved through various community engagement programs. So I will, with these words, request that the dilemma that we face in our life between the professional and the personal, between the ethical and the moral judgments that we have to invoke, between now and the future, between me and the others, these dilemmas that arise in being able to come out with fairness, with justice, with inclusion are not easy. And I'm sure today we will all be enlightened by the wisdom of the Jagadguru
on various aspects, including these paradoxes that we face in our life. Good evening. And now, when the Swami will say the Bidavadi of Sridharacharya, then Swami will take it. नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णु श्रीधरानंद वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः त्वय्यात्मन जगन्नाथ मानुषं संभवेष्यति त्रितकमलाकुचमण्डल त्रितकुण्डलय कलित ललित वनमाल जय जय देव जय जय देव जय जय देव श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य परिवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाम यम यमाधन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनाद्यच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमाय गमसार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्र परापर विद्या विद्योदिदान्तःकरणा संगत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षक श्रीमत् धर्म साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन् महाराजा धीराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्तवित्ताय विविध विविधाय हरिहराय धर्माय धर्मानोन्नताय महोदयीरभासिनः श्रीमज्जगन्नाथ धर्मलाम्बोपासकाय पूर्वाङ्गाय श्रीगोवर्धन भोगवर्धन पीठाधीश्वराय श्रीमद्राजराजेश्वराय
जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुभद्रा भगवती की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री सुभद्रा भगवती की। हर हर महादेव। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः जनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। संपर्चित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, यहाँ के प्रबंधकों ने इस संगोष्ठी का समायोजन आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक किया है। इस संगोष्ठी के समायोजन में जिन महान भावों का गुप्त व प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, सृष्टि की संरचना सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर करते हैं। उनकी शक्ति त्रिगुणमयी माया है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्पाल और सागर जंगम प्राणी सब परमात्मा की
अभिव्यक्ति मान्य है। वेदों का उद्घोष है कि वेद सम्मत परमात्मा जगत बनाता ही नहीं है, अपितु स्वयं जगत बनता भी है। आधुनिक भाषा में कहें तो इस सृष्टि का मेकर और मैटर दोनों ही परमात्मा सिद्ध होता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जैसे दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन होता है, यह क्रम चलता रहता है। ठीक वैसे ही सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम चलता रहता है। प्रलय के पूर्व क्षण तक जो जीव कृतार्थ नहीं होते, तृप्त नहीं होते, हृदय में अतृप्त वासना को संजोए रखते हैं, उन्हें कृतार्थता का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से महासर्ग के प्रारंभ में भगवान आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना करते हैं और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। उसके पीछे प्रयोजन क्या है? सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन पर प्रकाश डाला गया। बुद्धिन्द्रिय मना प्राणान जनानाम असुदर प्रभु मात्रार्थम तपवार्थम च आत्मने कल्पनाय। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी उपलब्धि हो सके, इसी भावना से परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की है और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया है। हमको आपको 5-7 घंटे तक प्राय नित्य ही गाढ़ी नींद सुलभ होती है। यदि गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो सब प्रकार की व्यवस्था सुलभ होने पर भी व्यक्ति विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहे। गाढ़ी नींद में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच हम आप तक नहीं होती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि मनोविकारों की गति हम तक नहीं होती। मृत्यु का भय हमें प्राप्त नहीं होता। दैहिक, दैविक, भौतिक तीव्रतापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति हमको नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी गाढ़ी नींद पुरुषार्थ भूमि नहीं है। न तो अर्थोपार्जन गाढ़ी नींद में संभव है, न धर्मानुष्ठान गाढ़ी नींद में संभव है, न विषयोपभोग गाढ़ी नींद में संभव है और न कृतार्थता या मोक्ष ही गाढ़ी नींद में संभव है। इसी प्रकार महाप्रलय की दशा में जीव भगवान से एकीभूत होकर शेष रहता है, तथापि महाप्रलय की दशा में वह कृतार्थ नहीं हो सकता। अतः भगवान अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से पुनः सृष्टि की संरचना करते हैं। प्रकृति के द्वार से हमको आकाश सुलभ है, वायु सुलभ है, तेज सुलभ है, जल सुलभ है, पृथ्वी सुलभ है। और पृथ्वी के द्वार से हमको पर्वत, वन, खनिज पदार्थ ये सब सुलभ है। अपने आप में व्यवस्था की आधारशिला हम
प्रकृति प्रदत्त पंचभूतों को मान सकते हैं। इनके बिना कोई व्यवस्था संभव ही नहीं हो सकती। जैसे यह भवन बना है, इस भवन को बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी वे सब सामग्रियां हमको प्रकृति से प्राप्त हुई। तो व्यवस्था की आधारशिला क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त सामग्री है उसका हम संरक्षण उचित ढंग से कर सकें, वितरण योग्य सामग्री का उचित ढंग से वितरण कर सकें और उचित ढंग से उपभोग कर सकें, तब व्यवस्था की पूर्ति होती। इसी प्रकार मानव अपनी बुद्धि के द्वारा अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल के योग से अन्न इत्यादि का उत्पादन करता है। मनुष्यों के द्वारा जो उत्पादित पदार्थ हैं उनका समुचित संकलन हो सके, संरक्षण हो सके, वितरण हो सके और उपभोग हो सके, इसकी जो स्वस्थ विधा है उसी का नाम मैनेजमेंट अथवा व्यवस्था है। एक विशिष्ट तथ्य है, जो भी मैनेजर व्यवस्थापक होते हैं या प्रबंधक होते हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभारत का एक वचन है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल हम तुलसी सहित विवेक। मुख का अर्थ यहाँ पर मुखगत प्राण है। हमारे आपके जीवन में मुख में सन्निहित जो प्राण है वह जिस प्रकार अंग प्रत्यंग का पालन पोषण विवेक पूर्वक करता है, सामान्य रीति से हमको लगता है कि अन्न जल का सेवन प्राण करता है। भूख प्यास हमको लगती है वो प्राण की महिमा है, और अन्न जल का सेवन हम करते हैं वो प्राण के माध्यम से करते हैं। लेकिन प्राण में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, विवेक युक्त प्रज्ञा शक्ति संपन्न प्राण होता है। शरीर के जिस अंग प्रत्यंग को जिस प्रकार का पोषण प्राप्त अन्न जल के द्वारा चाहिए प्राण करता है। कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, स्वयं को भी प्राण परिपुष्ट करता है। तो जिस प्रकार प्राण में एक तो अहंकार नहीं है, दूसरा प्राण में आसक्ति नहीं है, तीसरा आलस्य नहीं है, चौथा प्राण में स्वार्थ का सन्निवेश नहीं है। उत्तम प्रबंधक किसको कहते हैं? जो अहंकार से शून्य हो, आसक्ति से शून्य हो, इसी प्रकार से आलस्य से शून्य हो और स्वार्थ विहीन हो। तो उत्तम प्रबंधक को प्राण के समान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से यह प्रेरणा प्रस्तुत की, एक मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ हमको यह विचार करना चाहिए कि व्यवस्था चेतन के लिए होती है या जड़ के लिए। पृथ्वी के लिए है? नहीं है। पृथ्वी के लिए नहीं होती, पानी के लिए नहीं होता, प्रकाश के लिए नहीं होता, पवन के लिए नहीं होता, आकाश के लिए नहीं होता, चटाई के लिए नहीं होती, खटाई के लिए नहीं होती, मिठाई के लिए नहीं होती। जितनी जड़ वस्तुएं हैं वे सब चेतन जीव का भोग्य बनती हैं। इसलिए सारी सृष्टि जो कुछ जड़ वस्तुओं से बनी है सबका उपभोक्ता जीव होता है। तो जीव के लिए जड़ वस्तुएं हैं, यह अनुभव के द्वारा सिद्ध है। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है। अब यह विचार करना चाहिए कि हमको अपनी आवश्यकता का ज्ञान ठीक से होगा। हमारी चाह का सचमुच में विषय क्या है इसका ज्ञान हमको ठीक से होगा तो व्यवस्था दिशाहीन नहीं होगी। हर व्यक्ति के जीवन में भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है। ये स्थूल शरीर की प्रधानता से प्राप्त होने वाले द्वंद्व हैं, सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास। फिर मन की प्रधानता से भी बहुत से द्वंद्व हमको प्राप्त होते हैं,
हानि की भावना, लाभ की भावना, शत्रु की भावना, मित्र की भावना, ये सब भावनाएं, इधर काम, इधर क्रोध, इधर लोभ, ये सब मन की प्रधानता से प्राप्त होने वाली समस्याएं हैं। इन सब का समाधान जीव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के माध्यम से और अपने उद्योग से करता है। थोड़ा विचार करके देखें तो भोजन के लिए हमको कृषि की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि के संपादन के लिए विविध सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय इत्यादि की व्यवस्था सबको संतुलित रूप में सदा सुलभ हो, इसकी वैज्ञानिकतम, दार्शनिकतम और व्यावहारिक धरातल पर बिल्कुल उचित व्यवस्था का नाम क्या है? सनातन वैदिक आर्य सम्मत व्यवस्था। आप बहुत गंभीरता पूर्वक वेदांत शास्त्रों का निरूपण करेंगे तो, अध्ययन करेंगे तो, उसके अनुसार बुद्धि को विकसित करेंगे तो यही सिद्ध होगा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हो, इसकी स्वच्छतम दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर जो विधा या व्यवस्था है उसी का नाम सनातन शास्त्रों में प्रबंध है, मैनेजमेंट है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी विचार करना है कि दार्शनिक वैज्ञानिक ढंग से विचार करने पर हमारा आपका जो शरीर है वो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश का संघात अर्थात पंचभूतों का तारतम्य संघात है। पंचभूतों के साथ हमारे शरीर की तादात्म्य करती है। पंचभूतों में ही अपने शरीर को मिलना है और शरीर का पोषण भी पंचभूतों के द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में हम व्यवस्था के नाम पर कोई ऐसा अभिशाप न बोल दें जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश के लिए घातक सिद्ध हो। थोड़ा ध्यान देकर सुने। आजकल ऊर्जा के जितने स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, इन सबको विकास के नाम पर कलुषित, विकृत, शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सीधे को आकाश की उपयोगिता हमको परिलक्षित नहीं होती, लेकिन आकाश ही नहीं हो तो पवन या वायु कहाँ रहे, सूर्य, चंद्र, अग्नि कहाँ रहे, जल कहाँ रहे, पृथ्वी कहाँ रहे। ऊर्जा के जो आस्तिक, नास्तिक, उभय सम्मत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये चार स्रोत हैं। निष्क्रिय होने पर भी व्यापक होने के कारण आकाश इन सबका आश्रय है। लेकिन हमने वेद विहीन विज्ञान के द्वारा विकास को परिभाषित किया, ज्ञानित किया। उसके कारण से महान विस्फोट, विश्व स्तर पर समष्टि सन्निपात का उदय हुआ है। ऊर्जा के पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये चारों के चारों स्रोत दूषित, विकृत और अत्यंत क्षुब्ध या कुपित कर दिए गए। इसलिए आजकल